Okay. So what we are going to discuss right now, the first thing that we'll discuss is, I want to talk about the course in itself. So the level of the course is very introductory and it is a fundamental course. So there is a benefit to it. The good part about being fundamental is that you don't need any basics. I say you don't need any proficiency, you don't need any experience at all. So agar, like, how can people learn digital marketing? This course is for everyone. Everyone can learn digital marketing, be it a student, be it like, you know, somebody who's maybe as old as my father, if they're very good at computers. So anybody can learn the course. That is the pro of, you know, having a very, very basic and fundamental course. The thing which is wrong is you know, you won't get too much of actionable information. You cannot get. I'll try to make it very, very actionable. I'll try, but a lot of people, when we began this course, they said, "Ki sir, will this help me generate better leads for my business? Will you be teaching Google AdWords? Will you be teaching me, you know, ads so that I can immediately increase my business?" I said, "Ki nahi, not very directly. You can get a firm theory ka basis on how things are done, but you know, if you're expecting कि यार ये एक क्लास लगा ली और उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के चैंपियन हो जाएंगे, हमारा बिजनेस में विल स्टार्ट डूइंग बेटर, तो ये ऐसा नहीं है. आई वांट टू मेक इट क्लियर. दिस कोर्स इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि अगर आप लर्नर हो, अगर a lot of people, they're very enthusiastic about digital marketing. In fact, some people keep giving me feedback. They tell me ki ha main, there was somebody here who said ki I am trying to develop a website for my father. I'm helping, you know, I'm a business person, I want to help myself get more leads. So this is perfect ki if you're in the learning stage, agar aap learner ho, tab this course is very, very good for you. So this is not an advanced course. It's not कि इसको करके overnight miracle हो जाएगा. But एक तो अगर आपको basics सीखने हैं without any experience, and if you are even a advanced learner or even a medium kind of a learner, we can do interactive. We can have interactive sessions, and it can really help you. I would say that this course is for students. 5 star, कोई problem ही नहीं. All students should attend this course, because the way that I'm going to teach digital marketing is, I'll start by giving, I'll give a lot of examples, I'll explain all the theory to you. मेरा ambition ये है कि later on, when you students, hopefully if you become digital marketers, I hope you become digital marketers, when you get something, you remember me. बाद में जाके 1 year down the line, 2 year down the line, when you're doing something, when you're doing SEO, you remember कि हाँ आशु ने भी ये बात बोली थी. So this is a basis for you, students who want to pursue digital marketing, who are curious कि यार career कैसा है, what we want to do. This course is perfect for students. Now for professionals. So I would say this course is also for professionals. ऐसे professional who are either working in marketing and communication, or they're even working in digital marketing. Now these people are not at zero. इनको बहुत कुछ आता है, but somehow, because a lot of people have learned on the job, they might not be very clear of the basics, of the fundamentals of whatever is going on. So इनके लिए मैं चाहता हूँ कि बत्ती चल जाए एक बार के लिए, whenever they're doing something, और वो बाद में याद करें कि अच्छा तो ये इसलिए हो रहा था, ये फंडा इसलिए हो रहा था. This is a very big thing. Professionals will really benefit from this. And marketing communication professionals, Marcom professionals, and even digital marketing. And I think this course is like a lot of people, I've looked at a lot of people who've joined the course, उनका LinkedIn के ऊपर उनकी चीज लिखी हुई है कि they are digital marketing enthusiasts. Like they're very enthusiastic about digital marketing. So उन लोगों के लिए definitely वो course है. So जो क्या कहते हैं marketing की enthusiasts है, like people who are enthused about digital marketing, it's definitely for these people. Because यहाँ आपको, you know, we'll try to make it very interactive. In fact, I think that a lot of you people are into digital marketing, or you have some kind of a basis, because the kind of questions that I'm getting from you, वो बहुत brilliant लोग. So once again, to recap, this is, you know, you don't need any experience for this thing.
मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा के रहूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आई जस्ट रियलाइज कि हमारे पास तो काफी ज्यादा टाइम है। वी हैव नेक्स्ट वीकेंड जिसके अंदर आई ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उसके बाद पूरा नेक्स्ट वीक हमारे पास है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि हमारे पास सिर्फ एक वीक है, इसलिए मैं इसका पेस थोड़ा स्लो भी करना चाहता हूँ। आई नीड मोर ऑफ इंटरेक्शन एंड मोर देन जस्ट टीचिंग। आई वुड वांट टू हैव दैट रिसोर्स डेटाबेस फॉर यू कि ये 4-5 चीजें आपको पढ़नी है एंड लेटर ऑन मे बी वी कैन आल्सो हैव क्विजेस और एनीथिंग। आई वांट टू बी वेरी ओपन किस तरीके से चल रहा है ये कोर्स। अगेन वन कॉन इज कि इट्स नॉट वेरी एक्शनेबल। एक्शनेबल कोर्स इस टाइप से नहीं है कि दिस इज नॉट लाइक एडवर्ड्स कोर्स कि आप इस कोर्स को कर लो उसके बाद इमीडिएटली आप एडवर्ड्स में ब्रिलियंट हो जाओगे। एंड इट्स परफेक्ट फॉर लर्नर्स। लर्नर्स जो प्रोफेशनल हैं बहुत एंथुसियास्टिक है। सम पीपल आर लर्नर्स फॉर लाइफ and I'm very and it's very very good for students who need an introduction to digital marketing. All right, so anybody who does not fit this bill, maybe this course is not for you, and anybody who's fits this bill, definitely I would want you to go ahead. A lot of people are asking me कि यार schedule क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे exactly आप मुझे बताओ. So this course used to be a 7-day course पहले. So my colleague, मेरी पुरानी colleague Sugandha, I have mentioned her, like her and I used to go to Delhi University. We would actually do this for our interns as well. We would teach this course. उस time पे we had a 7-day course. But 7 days क्यों था? Because every day we would teach more than 3 hours. I think that इसको मैं थोड़ा structure नहीं देना चाहता, थोड़ा सा structure के साथ चलूंगा, but let's try to keep it open. Okay, now I need some feedback from you guys. Okay, पहली चीज जो मैं जानना चाहता हूं, the WhatsApp group that we have, इसको हम ओपन कर दें क्या? Because the problem is कि we have a lot of people in the WhatsApp group. It's an admin only group. I made it an admin only group for the simple reason कि यार चिटचाट बहुत शुरू हो जाती है. मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुप्स का मैं पार्ट भी था. होता क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई चलते रहती है, लोग अपने पंगे लेते रहते हैं, कभी कभी इनअप्रोप्रिएट चीजें डाल देती है. तो मैं पुलिस पर्सन नहीं बनना चाहता यहाँ आके कि किसी को डांटू, किसी को निकालू, किसी को भगाऊं. So I want to know your opinion कि WhatsApp ग्रुप को क्या हमें ओपन कर देना चाहिए? What I'll do is I'll put a poll. I'll take a poll. If a lot of people, because इसके भी merits हैं, इसके merits ये है कि फिर हम interaction कर सकते हैं. Then what we can do is we can keep sharing things. We can keep sharing ideas all the time. So there are very there's a very good reason why this should be done. But उसके लिए मुझे admin चाहिए. I'm too old to be policing WhatsApp groups. So probably we'll think of something, कोई तरीका निकालेंगे जिसके अंदर we can have a couple of admins who can keep looking at the group so that उस group के अंदर conversation हमेशा relevant हो. Another option that I thought was maybe WhatsApp group से निकल के हम Facebook group भी बना सकते हैं. बिकॉज फेसबुक ग्रुप की कन्वीनियंस, मतलब दोनों की अलग अलग कन्वीनियंस है. व्हाट्सएप ग्रुप तो मोबाइल ज्यादा होता है, फेसबुक ग्रुप के अंदर हम मॉडरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं. सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट वील हैव टू हैंडल बिकॉज आई वांट दिस ग्रुप टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द कोर्स एंड्स. सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. दिस इज फर्स्ट. सेकंड चीज क्या है कि आई वांट टू नो कि आई जस्ट वांट टू नो योर फीडबैक कि हम क्या बेटर कर सकते हैं. Okay, so I would want I'll keep it objective type. I'll put a Google poll. जैसे मैं हमेशा Google Sheet का poll एक भेजता हूँ आपको, and so we can come to a couple of decisions here because we need to continue with this course. All right. So now I'll begin with the third class in the series of digital marketing. पहले I want to recap, like in 5 or 6 minutes I want to talk about what did I talk about. अभी तक मैंने क्या क्या बात करी थी. So in the first class we found out how Google works. I'm sorry, उससे पहले in the first class we talked about how you get traffic to your website. Okay, because digital marketing is all about, it's about a lot of other things, but the primary motive of any digital marketer is that you should get people, you should get visitors to visit your website.
You should get visitors to visit and also use your website and not and even your web application. अगर आपके पास वेब ऐप भी है तो उस वेब ऐप को प्ले स्टोर पे बैठे हुए वेब ऐप तो कुछ कर नहीं रहा, अंडे तो दे नहीं रहे हैं. So the first question that we need to answer is, where do you get traffic to your website? A lot of people would be familiar कि अलग-अलग sources होती हैं. एक होता है organic traffic जो search engines के through आता है, social media, email. So we talked about a lot of ways by which you can get traffic, and through that we understood कि digital marketer क्या first purpose क्या होता है, that is to get traffic. And excuse me. And what are the means through which we can get traffic, and through that we learned the various disciplines of digital marketing. The disciplines broadly are SEO and content marketing, social media managers, social media marketing, search engine managers, which is paid ads, email marketers, etc. I'm going to talk a lot about search engine optimization, content marketing. I'm going to talk a lot, maybe a little bit about social media, and I will also try to teach you basics of ads. Abhi we are concentrating on SEO. A lot of people talk about SEO and content marketing. It is the way by which you can get traffic to your website through Google or through any search engine. When people are looking for their queries, you want to be there. So this is what we are talking about. सेकेंड हमने उस फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट हाउ सर्च इंजिन्स वर्क. सिंपल 3 स्टेप्स है. पहला स्टेप होता है क्रॉलिंग. पूरे इंटरनेट की, पूरे वेब की इंफॉर्मेशन कोई जाके पढ़ता है या पढ़ती है. दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग. And this is, I'll share videos etc. for this. You don't need a class to understand that. Indexing is when all the information of the internet is indexed in Google का की तिजोरी. Google के database के अंदर सारी index के अंदर all the information is accumulated. And the third step is algorithm. Google algorithm, and this is something that we are concentrating on right now. There are 20-30 relevant pages. Whenever somebody types a query in Google, the algorithm decides which page is more relevant to the user, and through that page comes on top. आपने पूरे इंटरनेट को पढ़ा, गूगल ने पूरे इंटरनेट को, ऑलमोस्ट सारे इंटरनेट को पढ़ा, पढ़ के पूरे इंटरनेट का जो माल पानी था, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको कहीं रख लिया एक जगह डेटाबेस के अंदर. उसके बाद जब लोगों ने कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढी डेटाबेस के अंदर, तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन थी उसको निकाला और उसको रेलेवेंस के अकॉर्डिंग रैंक करके लोगों को प्रेजेंट कर दिया. सो दीज आर द 3 स्टेप्स. एज if we want to become SEO or content professionals, we need to know about all of these things, and we especially need to know कि Google कैसे rank करते हैं pages को. So this was the second class. This was the first class. Second class के अंदर हम थोड़ा सा algorithm के पास गए. We defined that there are two ranking factors in search engine. First is keywords and second is backlinks. हमारे पास 2 पेजेस हैं. ये रैंक 1 पे होगा या ये रैंक 1 पे होगा, ये रैंक 2 पे होगी, ये रैंक 1 पे होगा. ये कैसे डिसाइड करता है एल्गोरिथम? The 2 factors between this, and it's not 2 cases. Usually there are thousands and thousands of web pages जिनको relevance से Google को रैंक करना होता है for the user. So उसमें सबसे important होता है keywords. Keywords are words that people are looking for. For example, I might be looking for something like install Zoom meetings, how to become a pro at Zoom meetings, how to conduct a Zoom meeting. These are the recent things that I've been looking for. When I put it in Google, keywords को match करके
बेस्ट इंफॉर्मेशन निकलती है। द सेकेंड रैंकिंग फैक्टर इज कि अगर दो वेब पेजेस हैं ए एंड बी, एक वेब पेज के पास 20 बैकलिंक हैं और दूसरे के पास 100 बैकलिंक हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ बेटर पेज फॉर द यूजर देन दिस पेज. So these are two methods. Now today I'm going to talk about something which is very very important, something which is also very actionable. I'm going to talk about, तो एसईओ दो टाइप का एसईओ होता है. वन इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन and the other is off page. On page are things that you can do on your website to make it rank better on Google search. On page is something which is under my control. मैंने वेबसाइट बनाया, वो वेबसाइट कैसे होना चाहिए, what should be the structure of the website, what should be in the website, what should be the properties, all of that, so that Google को वो पसंद आए. Because सबसे पहले तो Google needs the information in a certain way. That information is provided by us. On-page optimization is all about how do you make your page, what are the things that you make in your page so that SEO को लेके it always ranks on the top. Not just ranks, it just like कहीं ना कहीं position के अंदर हमारा appear करे search result में. That is called on-page optimization. Off-page optimization is all about backlinks. कि मेरा वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हों, अगर मेरे पास ज्यादा बैकलिंक्स हैं या मुझे कैसे, अगर मेरे पास कम बैकलिंक्स हैं तो वो और बैकलिंक मैं कैसे बनाऊं. दिस इज समथिंग दैट आई डोंट कंट्रोल बिकॉज द बैकलिंक्स फॉर माय वेबसाइट आर इन अदर वेबसाइट्स. तो मैं उनसे जाके किसी और से जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर मैम आप प्लीज मेरा बैकलिंक आप अपने वेबसाइट के अंदर डालिए, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ पेज एंड नॉट मच इन माय कंट्रोल. Today we will be talking about on-page optimization. I think today's class is very very important because I'm going to reveal how does Google want to see your content. हुआ क्या, Google मतलब इनिशियली क्या था कि जब 2000s के अंदर जब इंटरनेट बहुत यंग था, so internet is not the way that the internet is right now. It has been Google has defined how the internet has to be made. For example, इस टाइम पे like has anybody heard of this term mobile friendly website? I'm sure a lot of, I mean आपने ये term सुना भी नहीं होगा because अब आजकल 2020 में हर कोई कहता है कि यार वेबसाइट तो मोबाइल फ्रेंडली होना ही चाहिए ना. ऑलराइट, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मोबाइल नॉट फ्रेंडली वेबसाइट का. IRCTC शायद है सबसे पॉपुलर, तो IRCTC है. मुझे लगता है IRCTC अभी रिस्पॉन्सिव नहीं किया ना इन्होंने. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. सो ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर लाइक वेरी फेमिलियर. आई गो टू IRCTC वेबसाइट. वैसे ये वेबसाइट बहुत इंप्रूव हुआ है लाइक ओवर द इयर्स. पहले तो ये लिटरली मतलब डर लगता था इस वेबसाइट पे जाने के लिए. अब तो काफी मतलब काफी इजी हो गया, काफी बढ़िया हो गया है उसके लिए. एक बार देखिए खुलेगा या नहीं. ओके जी, हाँ मुझे लगता कर दिया इन्होंने. अर्लियर क्या होता था कि जैसे अगर मैं मोबाइल के अंदर किसी भी उसको देखता था, वेबसाइट को देखता था, तो वो एकदम से छोटा हो जाता था. हाँ कर दिया यार इन्होंने, वाह. नहीं नहीं किया. ओके, सो द थिंग इज कि लाइक राइट नाउ लाइक आई लुक्ड एट द वेबसाइट इन डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप में आई कैन व्यू द वेबसाइट, इट्स लुकिंग रियली गुड. However, जैसे ही मैं मोबाइल के अंदर, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग इन माय ब्राउजर, दिस इज नॉट ऑन माय मोबाइल, तो ये वेबसाइट पूरा हिल जाता है, यहाँ वहां जाना शुरू हो जाता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज, दिस इज नॉट अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट. ये बना था डेस्कटॉप के लिए, ये मोबाइल के लिए नहीं बना है. तो इनिशियली क्या हुआ, सारे वेबसाइट्स जो होते थे वो डेस्कटॉप वेबसाइट्स होते थे. देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ मोबाइल्स बिकॉज बहुत लोग होते थे, कम ही लोग थे जिनके पास मोबाइल पे एक तो इतना फास्ट इंटरनेट होता था या वो मोबाइल को यूज भी करते थे. एंड दिस वाज अ कपल ऑफ इयर्स अगो.
So Google knew कि the future of the internet is mobile. आपको पता है कि इस टाइम पे अभी आई वाज लुकिंग एट द स्टैट्स, रिलायंस आज जैसे जियो को फेसबुक ने 6 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए जियो के अंदर. क्यों? बिकॉज फेसबुक को पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल बी एक्सेसिंग द इंटरनेट, नए जो लोग हैं, दे विल ऑल बी डूइंग इट थ्रू जियो. सो व्हेन जियो का कॉन्सेप्ट आया, अब जियो का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने पहली बार जिंदगी में, फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, दे हैव एक्सेस द इंटरनेट not on a desktop, but they have accessed it on a mobile phone. So Google knew that mobile phone will be the next generation. अब वेबसाइट्स, डेस्कटॉप ऑब्सोलीट हो जाएगा, मोबाइल फोन पे सब वेबसाइट देखेंगे. तो उन्होंने क्या किया, लोगों को बोला कि भाई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ. द वेबसाइट शुड हैव गुड एक्सपीरियंस इन डेस्कटॉप एंड मोबाइल. किसी ने सुना नहीं, बिकॉज आपको कोडिंग करनी पड़ती है, आपको वापस जाके अपने पूरे वेबसाइट को चेंज करना पड़ता है. फिर गूगल ने कहा कि बॉस, मेरे को लोगों को फोर्स करना है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स के लिए. तो गूगल केम अप विद समथिंग व्हिच वाज कॉल्ड अ मोबाइल इंडेक्स. उन्होंने कहा, जैसे अभी मैंने इंडेक्स की बात करी, तो इंडेक्स क्या है? गूगल का इंडेक्स इज गूगल्स डेटाबेस ऑफ ऑल द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट जो गूगल ने क्रॉल किया है. तो पहले क्या होता था, सिर्फ एक डेटाबेस होता था, वो होता था डेस्कटॉप का डेटाबेस. गूगल ने क्या किया, उन्होंने एक अलग से डेटाबेस बनाया मोबाइल के लिए, एंड मोबाइल इंडेक्स के अंदर जो अनफ्रेंडली वेबसाइट्स थे उनका गूगल ने रैंक डाउन करना शुरू कर दिया. सो गूगल सेड कि ये 5 रिजल्ट्स हैं. जब किसी ने क्वेरी डाली, सो द क्वेरी व्हेन इट इज क्वेरी इज पुट, this query, there are 5 websites which are matching this query. मतलब किसी ने कुछ ढूंढा, मोबाइल फोन सर्विसेज, आई वांट टू फाइंड अ मोबाइल फोन और बाय अ मोबाइल फोन, ये 5 वेबसाइट्स हैं जो बात कर रहे हैं उनके बारे में. However, I am a user and I am doing this search on mobile. तो अगर ये वेबसाइट 1, 2 और 3 बहुत अच्छे वेबसाइट है, बहुत अच्छे बढ़िया वेबसाइट है, बट ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो ये मोबाइल सर्च पे नहीं आएंगे टॉप पे. 4 और 5, इवन इफ वो अच्छे वेबसाइट नहीं है, इवन इफ उनके बैकलिंक्स अच्छे नहीं है, उनका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, मोबाइल में अच्छे एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ वो वेबसाइट्स आएंगे जो मोबाइल फ्रेंडली है. जैसे ही गूगल ने ये किया, एंड आई थिंक दिस वाज डन इन 2010-11 में इसके बारे में बस शुरू हो चुकी थी, सारे जो वेब मास्टर्स थे उन्होंने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दिया. अब तो ये एक स्टैंडर्ड हो चुका है. अब तो अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और देयर इज समथिंग कॉल्ड मोबाइल वर्जन. तो कभी कभी आपने देखा होगा m.indiatimes. देखा होगा आपने आपने m.facebook.com देखा होगा. ऑल ऑफ दीज आर स्पेशल मोबाइल वर्जन्स ऑफ द वेबसाइट. तो होता क्या है कि अगर मैं डेस्कटॉप से इंडिया टाइम्स को एक्सेस करूंगा तो मुझे indiatimes.com भेजा जाएगा, अगर मैं मोबाइल से करूंगा तो मुझे मोबाइल वर्जन दिया जाएगा. या वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिव होती है. रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरे एलिमेंट्स हैं, जब मैं मोबाइल में इसको व्यू करूंगा तो वो कैस्केड कर जाते हैं, एक के नीचे एक आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में आई डोंट वांट कि मैं यहां वहां स्क्रॉल करूं. मोबाइल के अंदर आई वांट सीधा एक्सपीरियंस. तो क्या होता है, ये एक के नीचे एक सेट हो जाते हैं, तो एक ही वेबसाइट मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर चल जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गूगल इज डिसाइडिंग कि इंटरनेट किस तरफ जाए. सो गूगल has, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज सैड. ऐसा नहीं है कि google.com में आप जा सकते हो और कहीं एक पेज पे आपको लिखा जाएगा, बट देर आर सम वेज, देर आर सम स्टेप्स टू मेक योर वेबसाइट ही बोलूंगा, टू मेक योर कंटेंट, आई वुड से गूगल फ्रेंडली. गूगल को वेबसाइट्स किसी एक तरीके से देखने होते हैं. देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम वेज बाय व्हिच दे से कि यार ऐसे वेबसाइट होना चाहिए. ऑन पेज एसईओ इज ऑल अबाउट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपको, आप वेबसाइट बना रहे हो, क्या क्या इस वेबसाइट में आप डालो, किस तरीके से इस वेबसाइट को डालो कि गूगल कहेगी वाह ऑसम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर रैंकिंग फैक्टर्स. अगेन,
there is a very big difference between ranking factors. तो खुश मत हो जाना, कहीं लोग खुश हो गए, वंश भाई कह रहे हैं कि यार अब तो मजा आ गया, इस क्लास के बाद तो मैं एसईओ एक्सपर्ट हो गया, मुझे गूगल के रूल पता चल गए, 5-6 तो रूल थे, वो सारे रूल अब मुझे आ गए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, आप आशु सर की क्लास क्या लगानी। तो ऐसा नहीं है, दिस इज हाइजीन लेवल होता है। आपने लाइक अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव रेड, लाइक इफ यू आर स्टूडेंट्स और एनीबॉडी, यू वुड नो अबाउट द मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। हायरार्की में क्या होता है, अलग अलग लेवल होते हैं, ये बेसिक लेवल होता है हाइजीन, बेसिक लेवल जो आपसे एक्सपेक्टेशन है। आज मैं आपको हाइजीन बताऊंगा कि ये होने के मतलब अगर ये तो करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं किया तो रैंकिंग के बारे में प्रोबेबली आप भूल जाओ। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं किया तो रैंक नहीं कर पाओगे, बहुत वाइड चीज है। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑलराइट, सबसे पहले when you talk about search engine optimization or even content marketing, the first step that you do is you select your keywords. So मेरा वेबसाइट है, for example I have a website, मतलब let's not even go to the website right now, let's not go to the website right now. I'll give an example. Let's say that I am a filmmaker, okay, so I have a studio, उस स्टूडियो में मैं फिल्म्स बनाता भी हूँ, लाइक यू नो मैं फिल्म्स का मतलब मैं एक तरीके से आपको फिल्म बनवानी है, आप मेरे से फिल्म बनवाइए। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल ट्राई टू डिसाइड कि लोग मेरे ट्रेड को क्या कहते हैं। सो कीवर्ड रिसर्च, ये जो कीवर्ड का सिलेक्शन का प्रोसीजर है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी लाइक एक्सटेंसिव, इट्स कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। ऑलराइट, इसके ऊपर पूरी एक क्लास लूंगा मैं, but to introduce you to what it is, it's saying ki if I am a filmmaker, how do I call myself, like what are people doing? So I might call myself a filmmaker, but are people looking for filmmakers? क्या लोग filmmakers देख रहे हैं? So that is the question that I need to solve. People are, so end में जाके purpose क्या है, कस्टमर का, मेरे कस्टमर का या गूगल के कस्टमर का। एक और चीज जो मैंने उस दिन बताई थी, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कस्टमर, मेरा कस्टमर, और ये है मेरा बिजनेस। माई ऑब्जेक्टिव इज दैट माई कस्टमर शुड फाइंड माई बिजनेस, पर बीच में एक दीवार है गूगल की। ऑल राइट, गूगल डिसाइड्स इफ माई बिजनेस विल बी शोन टू द कस्टमर। अब है क्या, जो गूगल का कस्टमर है वो भी मेरा कस्टमर है। So if I, what I do is, if I make things good for Google's customer, Google मुझे customer से मिला देगा। What Google is trying to say is कि boss, ये this customer is mine. She or he is looking for something. If whatever you are doing is good enough, तो मैं झलक दिखा दूंगा, मैं आपस में वो कनेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, what are people looking for? What are the words in which they are looking for? For example, फिल्म मेकर नहीं ढूंढेंगे, लोग कहेंगे फिल्म स्टूडियो, ठीक है, फिल्म स्टूडियो इन दिल्ली, फिल्म मेकर, आई वांट टू गेट अ फिल्म मेड, हाउ डू आई गेट अ फिल्म मेड। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत तरीके हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज बाय व्हिच योर कस्टमर्स which are also Google's customers are looking for your business. So it's not necessary कि मैं फिल्म मेकर बन गया, या मैंने क्या किया, बोला ही नहीं फिल्म मेकर, मेरे वेबसाइट में हो गया we create dreams, I am a dream maker। अब बबुआ, ड्रीम तो तुम बना रहे हो, पर लोग तो फिल्म ढूंढ रहे हैं, लोग तो ड्रीम नहीं ढूंढ रहे। तो the first thing that you need to do is you need to first understand कि what does the customer need, कस्टमर को क्या चाहिए जब वो मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। So the customer's purpose we have to decide. Second, the words used by the customer. किन शब्दों में
लोग किन शब्दों से मेरे बिजनेस को कस्टमर ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी. So the first step to do everything is keyword research. I hope I'm able to make it clear. All right, थोड़े से questions आ रहे हैं. हाँ, so Vanshya is saying, does user location affects the results? Absolutely. One of the very biggest, and it's not a ranking factor. आपने बहुत अच्छी बात करी वंशय. So the thing is, सबसे पहले एग्जाम्पल है, एंड द एग्जाम्पल इज कि आई वांट टू ईट आइसक्रीम. सो पहले दुनिया में क्या होता था, लोग बाहर जा सकते थे. सो इन सच अ नाइस नाइट लाइक टुडे, 7:13 है, थोड़ी गर्मी भी हो रही है दिल्ली के अंदर, आई वुड वांट टू हैव सम आइसक्रीम, राइट? अभी तो नहीं जा सकता. सो व्हाट पीपल वुड डू इज दे वुड लुक फॉर आइसक्रीम पार्लर नियर मी. अब अगर मैंने दिल्ली में किया या मुंबई में किया, इसको तो फर्क पड़ गया ना, राइट? मैंने यूएस में कुछ ढूंढा, मैंने इंडिया में ढूंढा, वो फर्क पड़ा. सो यूजर्स लोकेशन डेफिनेटली affects the results. Again, whenever you have such a question, Vanshya or anybody, you have to think from the customer. मैं कस्टमर हूँ गूगल का, मैं कस्टमर हूँ आपका भी हो सकता हूँ. मेरे को बेस्ट सर्च रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट मेरे को लोकेशन वाइज आएगा. इनफैक्ट मैंने पिछली बार बताया था, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग कीवर्ड्स भी यूज होते हैं. सो आई गिव एन एग्जांपल. पीपल कॉल सोफा जो होता है उसको हम कहते हैं सोफा, अमेरिकन उसको काउच कहते हैं. सो अगर अमेरिकन, सो आई वुड बी, अगर मुझे सोफा की सफाई करानी है, so I would be looking for sofa cleaning service, but an American will be looking for clean my couch, right? So all that really matters. The first thing is you have to understand your customer's purpose. What does the customer want? Purpose नहीं बोलूंगा, customer's intent. I'm sorry. The intention of the customer is to eat ice cream. The intention of the customer is to get a film made. What are the words that they are using to express that? I cannot मैं बार बार इसको repeat कर रहा हूँ. I cannot emphasize this even there is I have to keep emphasizing this thing. For SEO, it's not the other way around. पहले लोग क्या करते थे, काम करो, keywords इकट्ठे करो, इस पेज को कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर दो और ये पेज रैंक करना शुरू हो जाएगा. अब इतना सिंपल नहीं है. अब आपको पहले कीवर्ड्स अच्छे वाले यूज करने पड़ते हैं, उन कीवर्ड्स को बहुत ढंग से ऑप्टिमाइज करना होता है, एंड देन यू विल बी एबल टू रैंक. सो फर्स्ट वी नीड टू डू सिलेक्ट आवर कीवर्ड्स एंड देन वी हैव टू डू कीवर्ड, मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च, टू गेट इनटू द माइंड ऑफ द कस्टमर, टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनको हमने फुलफिल करना है. और सेकेंड स्टेप जो है, we need to optimize our web page for these keywords. एक बहुत बड़ी बात, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसने वेबसाइट क्यों नहीं बोला. SEO and on page optimization पेज पे होता है. So it's like, if you have 8 pages, हर पेज का ऑप्टिमाइजेशन अलग करना पड़ता है. So that's why I have not said website. So I am going to mainly talk about this optimizing, कि आप अपने कीवर्ड्स को, आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए, कैसे उन कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में डालो और क्या क्या करो उस कंटेंट के अंदर कि गूगल के अंदर आपका उस कीवर्ड के लिए आपका वेब पेज रैंक करने लगे. 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं. क्या कहते हैं? So somebody called Redmi is saying it's like different hashtags that we put in our posts on Instagram. Loosely yes, I mean because hashtags are, for example, hashtags लोग use करते हैं. For example, अब मुझे खाने के बारे में देखना है, so I will use the hashtag food. So hashtags are not really keywords. Hashtags are more about topics, कि ये जो सारे पोस्ट है ये इस टॉपिक के ऊपर है. Vishal has a very good question. He says, similarly, if I use the right keywords in a post which we post on Facebook or LinkedIn, does it work the same way? Yes, because Facebook जो है, LinkedIn है, those are also kind of search engines. Because एक तरीके से एक बात बताइए, ये मेरा कंटेंट है, so this is my content, this is me. मैं कैसे इस कंटेंट को समझूं? मुझे कुछ तो इस कंटेंट में पढ़ना पड़ेगा ना. तो if I'm a human, I'll be able to read it, I'll be able to understand it, I'll be able to watch the video. पर अगर मैं मशीन हूं, अगर मैं रोबोट हूं,
तो मैं कैसे इस कंटेंट को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? तो मेरे को कुछ कीवर्ड्स वर्ड्स चाहिए ना इसको पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली कीवर्ड्स जरूरी होती है। एंड कीवर्ड्स आर नॉट इवन नेसेसरी यार, मतलब इट्स नॉट इवन, कीवर्ड्स आर मोर, देयर इज मोर टू कीवर्ड्स देन गूगल। कीवर्ड्स आर समथिंग जो हमारे दिमाग के अंदर इमोशंस रिवोक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है फ्री। फ्री एक ऐसी चीज है जिसको देख के हमारे दिमाग में चीजें निकल के आती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गूगल के लिए कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आल्सो डिफाइन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। कीवर्ड्स टॉक अबाउट की द पर्सन्स इंटेंट। अब जैसे इसके अंदर आप देखिए, फिल्म मेकर, फिल्म स्टूडियो इन दिल्ली, आई वांट टू गेट अ फिल्म मेड, हाउ डू आई गेट अ फिल्म मेड? इसमें क्या है, इसमें भी इंटेंशन अलग अलग है। प्रोबेबली फिल्म स्टूडियो इन न्यू दिल्ली वालों को इमीडिएट काम है, उनको इमीडिएट मूवी बनवानी है। ये जो पर्सन है कि हाउ डू आई गेट अ मूवी मेड, ये सोच रहे हैं, किसी ने इनसे बोला है कि जी मूवी बनानी है, या सोच रहे हैं कि इनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है। नाउ ही इज जस्ट ट्राइंग टू, तो इनको रिजल्ट वो नहीं चाहिए कि आप मूवी बनाइए, इनको आंसर चाहिए कि मूवी कैसे बनाई जाए, और इस चीज के बारे में, इंटेंट के बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। All right. Garv says, does Google review affect the ranking? Yes, it does, but only for the 3 pack. वो local pack जो आता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक लोकल सर्च में लोकल पैक आता है, उसमें रिव्यूज इफेक्ट होते हैं। आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं देखूं आइसक्रीम, नियर मी, देख रहे हो आप इसको? सो इसके अंदर क्या होता है, ये लोकल वाला एक पैक आता है, दिस इज कॉल्ड द लोकल पैक। तो इसके अंदर रिव्यूज डेफिनेटली इफेक्ट करती है। मतलब मैं सीधे से नहीं कह सकता इसको कि जैसे इसके 68 रिव्यूज हैं, इसके सिर्फ 4 रिव्यूज हैं आज इस टाइम पे, तो मैं वैसे भी नहीं कह सकता, बिकॉज सब कुछ बंद है ऑलरेडी, हर जगह टेम्परली क्लोज्ड है। तो ये लोकल पैक के अंदर रिव्यूज रियली मैटर। लोकल सर्चेस में नियर मी, समथिंग इन माय नेबरहुड, या सब कभी कभी लोग कहते हैं कि लाइक मुंबई के लिए कि आई नीड, लोअर परेल में आई नीड एन आइसक्रीम पार्लर, तो उन चीजों में इफेक्ट करते हैं रिव्यूज। बिकॉज बाद में जाके इसको हम दूसरे तरीके से सोचना शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करती है। गूगल चाहता है कि मुझे बेस्ट आइसक्रीम मिले, तो गूगल के लिए बेस्ट बेट क्या है, जिनकी ज्यादा रिव्यूज है, जिनके पास प्रेस ज्यादा है, तो उनकी आइसक्रीम ज्यादा दिखाएंगे, मेरी आइसक्रीम कम दिखाएंगे। Priyanshu, sir, if one has business online and provides services all over India, so we can rank top in India and not in particular city. प्रियांशु, इसको लोकल एसईओ स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोकली लोग पेज सिटी वाइज पेज बनाते हैं। सो फिल्म स्टूडियो इन दिल्ली का एक अलग पेज होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा होम पेज ही आए ना हर किसी के लिए। प्रॉब्लम लोगों की क्या होती है, लोगों को ये लगता है जब वेबसाइट बनाते हैं, उनको लगता है कि मेरे को सारी चीज होम पेज पे आ जाए। ऐसा नहीं होता। यूजुअली जैसे अगर आप अर्बन कंपनी को देखोगे, अर्बन कंपनी जो अर्बन क्लैब कहलाते थे, दे आर द मोस्ट लाइक हाइपर, मतलब सारे सिटीज में है, और उनके वेबसाइट के थ्रू बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐप के थ्रू भी होती है। तो दे विल ऑलवेज हैव दिल्ली, मुंबई, इनफैक्ट वो बहुत लोकेलिटीज में भी होती है उनके पास। तो उनका यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, दिल्ली, जैसे ये हो गया सर्विस, सॉरी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे सर्विस हो गई, क्या कहते हैं, हेयर सैलून एट होम, उनका यूआरएल, अब ये यूआरएल दिखा रहा हूं, स्लैश दिल्ली होगा एक पेज, एक होगा स्लैश दिल्ली स्लैश जीके2, या जैसे स्लैश मुंबई तो स्लैश बांद्रा, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट। सो ऐसा नहीं है, यू कैन मेक पीपल, यू कैन मेक स्पेसिफिक पेजेस, बिकॉज इस तरीके से यही पेज, ये वेब पेजेस रैंक कर रहे हैं। इफ आई एम लुकिंग फॉर अ हेयर सैलून इन दिल्ली, तो गूगल वुड से कि दिल्ली वाला ही तो सबसे ऊपर आना चाहिए ना, देयर शुड बी एनी अदर रिजल्ट दैट कम्स। All right. So now very quickly, I want to go through this. Aaj we have a shorter class. I want to leave, I want to leave you at 8. तो तब तक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. We'll try to have some kind of a question answer session also. Okay. पहले मैं आपको वेब पेज दिखाना चाहता हूं, एक रफ तरीके से दिखाना चाहता हूं कि वेब पेज किस तरीके का होता है। अगेन मैं आजकल, पहले मैं जब कुछ टाइम होता था, तो मैं जब भी, ये वायर फ्रेम कहते हैं इसको, जब भी मैं वायर फ्रेम बनाता था कि वो कैसा दिखता है, तो मैं वायर फ्रेम हमेशा बनाता था डेस्कटॉप का। अब डेस्कटॉप का इतना रेलेवेंसी नहीं है, ज्यादा डेस्कटॉप ट्रैफिक ही नहीं आता, तो हमेशा मैं बनाता हूँ वायर फ्रेम मोबाइल फोन का। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है गाइस, सीधी लाइन भी नहीं खिंचती है मेरे से।
ओके, सो ये मेरा वेब पेज है। इस वेब पेज में सबसे पहले चीज होती है यूआरएल। ऑलराइट, क्रोम में नहीं दिखता यूआरएल, मतलब जो वेब क्रोम होता है उसके अंदर यूआरएल नहीं दिखता, बट डेस्कटॉप के अंदर आपको सबसे पहले यूआरएल दिखता है। उसके बाद क्या होता है, यहां आप एक हेडिंग डालते हो, एंड उसके नीचे आप सब हेडिंग डालते हो। वेलकम टू माई आइसक्रीम पार्लर, दिस इज द मोस्ट फेमस आइसक्रीम पार्लर इन इंडिया, वगैरह वगैरह करके आप एक हेडिंग डालोगे, बिकॉज लोगों का अटेंशन लेनी होती है। इनफैक्ट बाद में मैं ये भी बात करूंगा, इस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए पेज को कि लोग आपको बेटर तरीके से फाइंड करें। उसके बाद क्या होता है, इमेजेस होती हैं, एंड उसके बाद आपका टेक्स्ट होता है, बीच में वीडियो भी हो सकता है, और काफी सारा टेक्स्ट, राइट, बटन्स होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप, मतलब क्या कहते हैं, अगर आप, मतलब इन एनी वे व्हेन यू लुक एट एनी वेब पेज, तो इसके अंदर यूआरएल, हेडिंग, सब हेडिंग, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एनी वेबसाइट एज सच। सो नाउ गूगल, गूगल क्या कहता है, गूगल ये कहता है कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपका पेज, आप मतलब क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, अपने कीवर्ड को सिलेक्ट करो, कीवर्ड या कीवर्ड्स। सो मैंने बोला कि मेरे पेज के लिए, जिन कीवर्ड्स के लिए मुझे इस पेज को रैंक करवाना है, ऑलराइट, सिलेक्ट कीवर्ड और कीवर्ड्स फॉर विच यू वांट पेज टू रैंक। एंड सेकंड होगा, अब मैं ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स पे आ रहा हूं, तो ऑप्टिमाइज वेब पेज फॉर दोज कीवर्ड्स। ऑलराइट, तो अच्छा एक चीज और था, लाइक दोज पीपल हु हैड अटेंडेड माय सेकंड क्लास, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, दो चीजें बताई थी। सो क्या होता है, जब गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर हम कोई भी, यू गाइस विल बी फेमिलियर विद दिस, व्हेनेवर वी सर्च फॉर सम कीवर्ड इन गूगल, तो क्या होता है, हमारे पास एक सर्च रिजल्ट आता है। वो सर्च रिजल्ट ऐसे दिखता है, उसमें एक तो यूआरएल होता है, उसके अंदर पेज टाइटल होता है, एंड उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। आपने ये देखा होगा स्नैपशॉट, कभी अभी भी काम करिए, अभी भी गूगल करिए किसी भी चीज को, ऑलराइट, किसी भी चीज को गूगल करिए, कोई भी लोकेट चीज को, आपको ऐसा ही रिजल्ट दिखेगा मोस्टली। एक छोटा सा ऊपर वो होगा, यूआरएल होगा, उसके बाद उसकी एक बड़ी हेडिंग होगी कि आप किस चीज पे क्लिक कर रहे हो, और डिस्क्रिप्शन होगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, ऑलराइट। सो ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स, और मुझे लग रहा है कि थोड़े से आप डर रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से बम फोड़ने वाला है हमारे ऊपर। ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स बहुत बहुत सिंपल है, ओके। गूगल नहीं कह रहा है, गूगल ने डायरेक्टली नहीं बोला कि आप ये ऑप्टिमाइजेशन करो, बट दिस इज अ वेरी वेरी वेल नोन फैक्ट कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि पहले आपको क्या करना है, आपको डालना है कीवर्ड यूआरएल में, ऑलराइट, कीवर्ड शुड बी इन हेडिंग, it should be in the subheadings। ये नहीं कि कीवर्ड आपने सिर्फ यहां डाल दिया, अच्छा होगा सब हेडिंग में भी डालो। ये जरूरी नहीं है कि यही सब हेडिंग आएगी, टेक्स्ट के अंदर भी कहीं से सब हेडिंग आ सकती है। ये सब हेडिंग 1 हो गई, ये सब हेडिंग 2 हो गई, तो सब हेडिंग्स के अंदर कोशिश करिए कि कीवर्ड को डालो। देयर शुड बी प्रॉपर, मतलब क्या कहते हैं, कीवर्ड्स इन टेक्स्ट। ये जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है, इसमें भी कीवर्ड होने चाहिए, एंड उसकी एक प्रॉपर डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये नहीं करना कि कीवर्ड को बार 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 रिपीट करते गए, बहुत बार रिपीट करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम डेंसिटी होती है कीवर्ड्स की, जितनी बार उसको रिपीट करना चाहिए,
एक चीज और, इंट्रो के अंदर कीवर्ड होना चाहिए। ऑलराइट, सो इफ आई गो टू द हेडिंग एंड सब हेडिंग, इंट्रो के ऊपर कीवर्ड्स होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या रीजन है इसका। इसका रीजन ये है बिकॉज हम इस वेबसाइट को ऐसे बनाते हैं कि क्रॉलर जो होता है, एंड आई गो बैक अगेन टू द क्रॉलर, some people who haven't attended my sessions, पुराने वाले सेशंस, ये फर्स्ट सेशन में मुझे बताया था क्रॉलर या वेब क्रॉलर्स या वेब स्पाइडर्स, दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनका जॉब होता है कि वो जाते हैं और वो पढ़ते हैं कंटेंट को, और फिर उस कंटेंट को पढ़ के उस सारे को गूगल की लाइब्रेरी में देके आते हैं। तो क्रॉलर कभी कभी क्या करते हैं, क्रॉलर जब आते हैं तो क्रॉलर को सबसे पहले समझना होता है कि आपका पेज का पर्पस क्या है। crawler needs to understand the purpose of your page. तो सबसे पहले जो क्रॉलर होते हैं वो आपके यूआरएल को पढ़ते हैं। ऑलराइट, यूआरएल को पढ़ते हैं क्रॉलर्स। पहले क्या होता था, आपको अगर मतलब काफी लोगों को याद नहीं होगा, अभी क्या होता है, जो वेब पेज होती है उनके पेजेस के नेम बड़े डिसेंट से होते हैं। आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा तो प्रोडक्ट होगा लाइक यू नो MI82 मोबाइल फोन, सब कुछ नाइसली लिखा होगा। उससे पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, यूआरएल्स के अंदर नंबर्स ज्यादा होते थे, उसमें वो एग्जैक्टली नंबर्स नहीं डालते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि सबसे पहले क्रॉलर आके आपके पेज को पढ़ता है, आपके यूआरएल को पढ़ता है। तो अगर आपने क्रॉलर को ढंग से इंफॉर्मेशन दी नहीं कि भाई तू यहाँ आ तो गया है, पर तूने यहाँ करना, मतलब ये पेज है क्या, इसका एड्रेस क्या है, कौन हूं मैं क्या बता रहा हूँ गूगल को, तो क्रॉलर को यहाँ यूआरएल के अंदर बहुत अच्छा होता है अगर आप अपना कीवर्ड डाल पाओ। कभी भी आप कोई भी कीवर्ड देखो, किसी का यूआरएल देखना पेज का, जो उस पेज के हेडिंग, यूजुअली क्या होता है, जो हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग जैसा क्रॉलर यूआरएल होता है, बिकॉज आपको कीवर्ड हेडिंग में भी डालना है। तो क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर को ना पेशेंस नहीं होती, क्रॉलर आता है या आती है, वो एकदम से थोड़ा बहुत पढ़ के कभी कभी ऐसे भाग जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर स्पेशली कीवर्ड को रखना पड़ता है। और हमेशा लोग कहते हैं कि पहले ही कैरेक्टर्स में, जैसे आपने अगर टेक्स्ट शुरू किया तो अपने कीवर्ड को पहले ही डाल दो, पहले ही क्या कहते हैं, अपने पहले ही मतलब पैराग्राफ के अंदर अपने कीवर्ड को आप डाल दीजिए, तभी क्रॉलर अच्छी तरह से, बिकॉज अगर आया क्रॉलर, क्रॉलर ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कीवर्ड देखा, उसके बाद क्रॉलर भाग गया या भाग गई। अगर उन्होंने इतना भी नहीं पढ़ा होता तो क्रॉलर को समझ में नहीं आएगा कि आपका पर्पस क्या है। रिमेंबर दिस, जब तक गूगल आपके पेज को ढंग से नहीं पढ़ेगा, तब तक वो पेज को कैसे, तब तक वो ढंग से कैसे अपीयर कर पाएगा सर्च के अंदर। तो इसलिए आपको क्लियरली अपने, पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, पेज का पर्पस होता है, पेज को किसी भी ऐसे मतलब किसी भी चीज के ऊपर पेज नहीं बनाया जाता। पहले तो आप पता करो कि कौन कौन से कीवर्ड आपके जरूरी हैं, हर कीवर्ड के लिए, नॉट हर कीवर्ड के लिए, बट जो सिमिलर कीवर्ड्स है उनको क्लब करके उनके लिए एक पेज बनाओ, और फिर वो जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को जगह जगह डाल दो। तो यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए, हेडिंग में कीवर्ड होना चाहिए, सब हेडिंग में कीवर्ड होना चाहिए, कीवर्ड शुड बी रिपीटेड इन टेक्स्ट एंड इट शुड बी रिपीटेड इन द इंट्रोडक्शन। लाइक कहीं ना कहीं कीवर्ड आप शुरुआत में डाल दो। उसके बाद आपका, इसको कहते हैं पेज टाइटल, कीवर्ड इन पेज टाइटल, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज बताइए, पेज टाइटल में कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड का क्या फायदा होगा? अभी आई एम जस्ट गेटिंग टू क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अभी इस क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। अब क्या हुआ, मैंने कुछ सर्च किया, मैंने सर्च किया कि मुझे मतलब क्या कहते हैं अपना मतलब मुझे गलगले का अचार चाहिए या कुछ भी अजीब सा है, मुझे छछूंदर का अचार चाहिए, ठीक है। यहाँ पेज आया, यहाँ पेज आया अंबेडकर, मतलब कौन से अपना अंबा माँ अम्बा अचार कंपनी, ठीक है, बेस्ट आम का अचार, यहाँ लिखा है आम का अचार, आप सबसे अच्छा आम का अचार यहाँ खरीद सकते हैं। अब भैया मुझे तो लाइक टैटूए का या किसी चीज का अचार चाहिए था, मैं तो उस पर क्लिक करूंगा ही नहीं। तो जो पर्पस है कीवर्ड का, वो कीवर्ड टाइटल में भी होना चाहिए, बिकॉज ये टाइटल पेज पे नहीं दिखता है, ये पीछे कोडिंग में होता है।
तो वो टाइटल का भी आपके पास कीवर्ड होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो प्रॉपर तरीके से लोग क्लिक नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, इस कंटेंट के अंदर इमेजेस भी हैं और वीडियो भी है। गूगल को कैसे पता कि ये इमेज क्या है? गूगल को तो पता नहीं है अभी तक। लोग कहते हैं, गूगल अभी तक कह रहा है कि जो क्रॉलर है वो क्रॉलर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ पाते हैं, वो क्रॉलर्स एक तो इमेज को रीड नहीं कर पाते हैं। और एक क्या है, जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो कहते हैं वीडियो को भी रीड नहीं कर पाते। देखो वीडियो का तो मुझे प्रॉपर डाउट है, मुझे सीरियसली पता है कि अब यूट्यूब में तो ऐसे बन गए हैं क्रॉलर कि वो फ्रेम बाय फ्रेम तुम्हारे वीडियो को भी पढ़ रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि आपका वीडियो क्या कह रहा है। आई बेट हो चुका है, इतना एडवांस तो ये हो चुकी है। ऑलराइट, सो इमेज और वीडियो को टेक्निकली क्रॉलर्स नहीं पढ़ पाते। सो इमेज को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम इमेज के अंदर टैग लगाते हैं, उसको कहते हैं इमेज ऑल्ट टैग। जैसे ये पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन कोडिंग के बैकएंड में होते हैं, वैसे ही सिमिलरली हर इमेज का एक ऑल्ट टैग होता है। उससे वो उस इमेज को पढ़ पाता है क्रॉलर कि वो क्या है इमेज का ऑल्ट टैग। मैं आपको, और वैसे ही वीडियो के अंदर भी हम एक ऑल्ट टैग लगाते हैं। तो इसलिए द नेक्स्ट स्टेप इज आपके कीवर्ड इन ऑल्ट टैग्स। ऑलराइट, ऑल्ट टैग्स की जो इमेज ऑल्टरनेट टैग्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी एक तरीके से हिस्ट्री है। आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि कभी कभी इमेज लोड नहीं होती है, इमेज लोड नहीं होती बट वो इमेज का कुछ टेक्स्ट आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो उसके पीछे कोडिंग में डाला जाता है। अगेन यू गाइज एज डिजिटल मार्केटर्स प्लीज डोंट बी स्केयर्ड। आप डर मत जाना कि यार ये तो कोडिंग की बातें कर रहा है, कोडिंग तो हम कर नहीं सकते। आपको ये काम नहीं करना है, आपने लिस्ट बना के दे देनी है कि ये इमेज ऑल्ट टैग्स हैं। आपके वेब डिजाइनर वो ऑल्ट टैग को डालेगा या डालेगी। एक और चीज हो चुकी है कि आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट सीएमएस में बनाते हैं। CMS is a content management system. आज सबसे कॉमन CMS है वर्डप्रेस। आई एम श्योर सबने सुना होगा वर्डप्रेस के बारे में। आप वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग्स बना सकते हो, आप वर्डप्रेस के अंदर प्रॉपर वेबसाइट्स बना सकते हो। इनफैक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जो वर्डप्रेस के अंदर बन जाती है। तो वर्डप्रेस के अंदर तो कुछ नहीं होता, इमेज का ऑल्ट डालना है। इमेज डालो, एक जगह होती है जहां आपको ऑल्ट डालना होता है, मैं आपको दिखा दूं। तो इसके बारे में घबराओ मत। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे कीवर्ड्स should be in prominent places and it should be repeated in a proper manner, not over repeated। ये नहीं कि आपने बार बार कीवर्ड डाल दिया जिससे गूगल को, कस्टमर को इमीडिएटली पता चल जाए कि आपका वो क्या है। मुझे चाहिए नींबू का अचार, मैंने ढूंढा नींबू का अचार, मुझे इमेज टाइटल ने और सबने बोला नींबू का अचार। जब मैंने इस पे क्लिक किया, सबसे पहले लाइक यू नो हेडिंग होनी चाहिए नींबू का अचार खरीद लो। ये नहीं होना चाहिए कि हाय वेलकम टू जय अम्बा पिकल्स, वी आर द नंबर 1 पिकल मैन्युफैक्चरर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। नहीं भाई, उसको ये नहीं चाहिए, वो नींबू का अचार खरीदने आया है, उसको आपकी कहानी नहीं चाहिए। इसीलिए ये सारा पर्पस है। जो भी आपने कीवर्ड सिलेक्ट किया है, जो भी पेज का पर्पस है, इट शुड बी रिपीटेड ऑल ओवर द पेज एवरीवेयर। आपको एग्जांपल दिखा देता हूं इमेज ऑल्ट का। इनफैक्ट इमेज ऑल्ट एक क्या कहते हैं, इमेज ऑल्ट एक बहुत अच्छा हिस्ट्री है, इमेज ऑल्ट की काफी अच्छी हिस्ट्री है। दैट हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन, आई मतलब काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। अब everybody, there are people with special needs. For example, if somebody is visually impaired, आप देख नहीं सकते, तो आप वेबसाइट कैसे पढ़ोगे? How will you, like you know, how do the visually impaired, how do the blind read websites? होता क्या है, they have a special, एक ब्राउजर होता है, वो ब्राउजर क्या करता है, वो उनको रीड आउट करके देता है। So all you need to do is you open a website, that browser will read everything out to you. तो उसमें तो the visually impaired cannot see images, right? तो इसलिए गूगल ने, और मतलब इसलिए वेब डिजाइनर्स ने कॉन्सेप्ट बनाया कि इमेज का भी डिस्क्रिप्शन डाल दो कि वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के ब्राउजर आपको सुना दे। इसलिए जो गूगल होता है, वो गूगल एक तरीके से उसको रिवॉर्ड करता है कि आपने ऐसा
वेबसाइट बनाया है विच इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। मैं आपको दिखा देता हूं ऑल्ट का बड़ा अच्छा एग्जांपल। इसमें मैं बार बार एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मेरे पुराने वेबसाइट का, द कंपनी दैट आई यूज्ड टू वर्क फॉर, बिकॉज इसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से वो किया था। इसका एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूं। सोफा क्लीनिंग सर्विस है, तभी मैं क्लीनिंग सर्विस का बहुत एग्जांपल लेता हूं। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। सो दिस पेज इज फॉर सोफा क्लीनिंग सर्विस। कीवर्ड इसके अंदर सोफा क्लीनिंग सर्विस है ऑब्वियसली। एक सेकेंड, हाँ, कीवर्ड इसके अंदर सोफा क्लीनिंग सर्विस है। एक बार आई एम सॉरी, सोफा क्लीनिंग सर्विस नहीं था, इसका था अच्छा, काफी लोगों ने पूछा है कि क्या हम एक ही कीवर्ड यूज कर सकते हैं या हम मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। हम मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एक बार देखिए। इसका कीवर्ड है प्रोफेशनल या सोफा ड्राई क्लीनिंग या सोफा ड्राई क्लीनिंग सर्विस। आप देखिए कीवर्ड इन हेडिंग, कीवर्ड इन सब हेडिंग, ठीक है, कीवर्ड कहीं ना कहीं दूसरी सब हेडिंग के अंदर। ये देखिए एडिशनल कीवर्ड्स अपहोल्स्ट्री ड्राई क्लीनिंग, तो बहुत लॉट ऑफ पीपल कॉल दिस अपहोल्स्ट्री ड्राई क्लीनिंग, तो वो भी हमने कीवर्ड चूज किया, उसको मेन नहीं डाला पर उसको यहां डाल दिया हमने। ओके, अब जो क्या कहते हैं, जो सोफा होता है उसको सोफा नहीं बोलते, उसको ये सब कुछ भी कहा जाता है। ये देखिए, सो हमने क्या किया, वी क्लीन सोफास, काउचेस, रिक्लाइनर्स, सोफा कम बेड्स और एनी काइंड ऑफ अपहोल्स्ट्री। लाइक मैंने क्या किया, स्टफिंग नहीं करी है, मैंने यहां नहीं डाला कि वी ऑफर सोफा क्लीनिंग सर्विस, काउच क्लीनिंग सर्विस, रिक्लाइनर क्लीनिंग सर्विस, सोफा कम बेड ड्राई क्लीनिंग सर्विस। नहीं, मुझे पता है कि यहां मैंने बात कर ली है, मैंने ऑलरेडी ड्राई क्लीनिंग डाल दी है। गूगल स्टूपिड नहीं है, गूगल पढ़ सकता है सबको, तो गूगल को पता चल गया कि ये क्या है, ये ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज है, किसके लिए, सोफा, काउच, रिक्लाइनर्स। तो अगर मैं रिक्लाइनर क्लीनिंग सर्विस या काउच क्लीनिंग सर्विस भी डालूं तो मेरा दिमाग होपफुली ये आना चाहिए। अब मैं आपको बैकएंड पे दिखाता हूं इसका। वही चीज थी, कोई भी वेबसाइट लीजिए, उसमें लिखिए कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से पीछे इसका सारा कोड निकल के आ जाता है। पहले हम ढूंढेंगे पेज टाइटल, ये देखिए पेज टाइटल, हाँ ये देखिए, सोफा ड्राई क्लीनिंग सर्विस एट डोर स्टेप्स। दोबारा कीवर्ड इन पेज टाइटल, ठीक है, पेज डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हैं, बुक सोफा ड्राई क्लीनिंग सर्विस इन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद। फिर कीवर्ड आ गया, अभी तो ये एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड क्लियरली सोफा ड्राई क्लीनिंग सर्विस है, उसको बार बार हम भेज मतलब रिपीट करे जा रहे हैं। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, इमेज ऑल्ट दिखाता हूं। ये इमेज है, आप देख रहे हैं, ये इमेज है, ये क्या है, एक लड़का है जो सोफा की सफाई कर रहा है। इसका आप ऑल्ट पढ़िए एक बार, ये देखिए, a young man wearing a t-shirt, head cap and nose mask scrubbing lather होती है झाग into the fabric of a sofa using a brush। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड है। अब इसके अंदर हमने कीवर्ड नहीं डाला है, गलती कर दी, बट जो इमेज ऑल्ट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उस इमेज ऑल्ट को देख के, एंड इट्स नॉट अबाउट स्टफिंग अ कीवर्ड इनटू इट, इट्स नॉट अबाउट कि आपने इमेज, बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं, इमेज ऑल्ट के अंदर सिर्फ कीवर्ड डाल देते हैं, सोफा क्लीनिंग सर्विस, नहीं, उसमें तो पेनल्टी भी लग सकती है। आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि अगर कोई आंख भी बंद कर ले, उसको अगर ऑल्ट बोला जाए तो उसको समझ में आ जाए कि ये इमेज क्या है। उसके बाद हमारा प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डेंसिटी का कुछ वो नहीं है, पर अभी मैं आपको समझाऊंगा और चीज। अभी मैं थोड़े ना क्वेश्चंस ले लेता हूं, एक मिनट। ओके, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, प्रियांशु ने बात करी थी मल्टी सिटी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। हबीबुल रहमान ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर ही बनाया। उनने पूछा, कैन वी पुट मेनी लोकेशन नेम्स इन आवर पेज एंड डज गूगल रैंक इट। फॉर एग्जांपल, हम अगर कहते हैं कि हमारी बेस्ट कंपनी इन मुंबई, बेस्ट इन दिल्ली है, तो क्या हम एक
एक पेज पे मल्टीपल लोकेशंस के लिए क्या हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? अभी बोलो, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर अ सर्टेन कीवर्ड। तो दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। मैं ना मतलब अब मैं ना थोड़ा मतलब जिसे बोलते हैं ना थोड़ा वियर्ड सा हो चुका हूँ, ठीक है? बिकॉज क्या हो गया, सब जवाबों का, सब सवालों का एक जवाब है। मुझे पता है बहुत इरिटेटिंग जवाब है, बट आप यूजर के पर्सपेक्टिव से देखिए। ओके, मेरे को सोफा क्लीनिंग सर्विस चाहिए, मैं मुंबई में हूं। अगर मेरे को दिल्ली और मुंबई का सेम पेज आ गया तो क्या मुझे फायदा है? मुझे तो सोफा का साफ करवाना है और मुझे सोफा साफ करवाना है मुंबई के अंदर। तो इसलिए इट इज नेवर एडवाइज्ड टू हैव एक ही कीवर्ड, एक ही वेब पेज पे मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल कीवर्ड मत करो। इससे आप रैंकिंग खराब नहीं कर रहे हो, इससे आप खराब कर रहे हो यूजर एक्सपीरियंस। मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक ऐसे वर्ड से जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इट्स कॉल्ड यूएक्स। जैसे आजकल वर्ड्स बन गए हैं ना, टॉप रैंक ऑन गूगल, लाइक ग्रोथ हैकर, हसलर। ठीक है, ग्रोथ हैकर तो पता नहीं होता ही क्या है, हसलर क्या होता है वो तो और समझ में नहीं आता। हमारे टाइम में तो हसलर बहुत बुरा मानते थे, जुआड़ी किस्म का आदमी मानते थे, पर आजकल लोग अपने लिंक्डइन पे भी लिखते हैं आई एम अ हसलर, आई एम अ ग्रोथ हैकर। ऐसे ये यूजर एक्सपीरियंस ना हर कोई यूज करते रहता है। आप हर चीज को, यूजर एक्सपीरियंस है, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन योर कस्टमर शूज। अगर मैंने एक पेज बनाया मुंबई दिल्ली के लिए दोनों, मैं क्यों नहीं अलग पेज बना रहा? उल्टा एक बात बताइए, मैं मुंबई वाले पेज में मैं 4 पेजेस बनाता हूं। मैं काम करता हूं, मुंबई में 2 पेजेस बनाता हूं, एक मराठी में बनाता हूं और एक हिंदी में बनाता हूं, एक इंग्लिश में बनाता हूं, 3 पेजेस बनाता हूं। मुझे पता है कि मुंबई के अंदर मराठी है, मुंबई के अंदर बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग लोग भी रहते हैं और मुंबई के बहुत लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा सजेशन आपको होगा, बिकॉज एक तरीके से वेबसाइट रैंक नहीं करता है हबीबुल, वेब पेज रैंक करता है। तो आप एक पेज बनाने की जगह मल्टीपल पेज बना दो, एज लॉन्ग एज आपके यूजर के लिए उस पेज का फायदा हो रहा है। कितने भी पेज बनाओ, यूजर के लिए अगर आपने जिंदगी आसान कर दी तो गूगल आपको यूजर देगा, आपको कस्टमर देगा। ऑलराइट, श्रीलेखा ने क्वेश्चन पूछा है, डस गूगल आइडेंटिफाई हैशटैग्स एज कीवर्ड्स? गूगल रीड्स टेक्स्ट, so if it is a hashtag, it is a table, it is bold, किसी भी तरीके से है, आइटलिक्स के अंदर है, किसी भी कलर में है, गूगल टेक्स्ट को पढ़ लेगा। तो बिकॉज बट ये हैशटैग को डालने का कोई फायदा नहीं है ना। अगर मैं यूजर की तरफ से देखूं तो मैंने वेबसाइट बनाया, दिस इज हैशटैग अचार, लेमन अचार। हैशटैग्स आर समथिंग जो विच आर अ प्रॉपर्टी, विच आर अ थिंग जो सोशल मीडिया के अंदर है। हैशटैग्स आर समथिंग जो टॉपिक्स को क्लस्टर करते हैं, जो यूजेबिलिटी बढ़ाते हैं। मुझे इस टाइम पे खाने की चीजें देखनी है तो आई विल गो फॉर हैशटैग फूड ऑन माय इंस्टाग्राम, और फिर वो फूड खाने, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें देखते रहूंगा और कहते रहूंगा यार भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो दैट डजंट रियली हैव टू, दैट हैज टू डू समथिंग विद यूजर एक्सपीरियंस। बाकी रही गूगल की बात, गूगल आजकल सब कुछ पढ़ लेता है, इमेजेस भी पढ़ने लगे हैं, मुझे पता है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सीन बना रहे हैं। अभी तो मैंने वो देखा गूगल लेंस, आपने देखा है गूगल फोटोज के अंदर एक चीज आ गई है गूगल लेंस। उसमें आप कोई भी मीम डालो या कोई भी चीज फोटो डालो जिसमें टेक्स्ट लिखा है, गूगल उस टेक्स्ट को खींच लेता है। तो अब तो वो इमेजेस पढ़ने के लिए बिल्कुल पास आ चुके हैं, राइट? ओके, अच्छा, Akshit says any specific limitations on number of keywords to be mentioned in the website to avoid penalty? It all depends on the kind of web page that you have made. मैंने एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग को, मतलब वो इतना एक्सटेंसिव ब्लॉग है, कोई टॉपिक समझता हूँ, सोचता हूँ, मैंने एक ब्लॉग लिखा हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। प्रॉपर ब्लॉग है, बहुत लंबा ब्लॉग है। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं एक ही कीवर्ड पे उसको ऑप्टिमाइज करूं, मैं 50 कीवर्ड के ऊपर भी उसको, 50 कीवर्ड पे भी उसको टारगेट कर सकता हूं। मैं मान रहा हूं कि 50 कीवर्ड में पेज टाइटल में तो रिपीट नहीं कर सकता, 50 कीवर्ड में है, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में तो रिपीट कर नहीं सकता, बट इट डजंट मैटर। अगर मेरे पास, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द पेज। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फर्स्ट सिलेक्ट द कीवर्ड्स दैट यू वांट एंड उन कीवर्ड्स के ऊपर अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं बॉस और भी कीवर्ड बन रहे हैं जिनको मैं इस पेज में नहीं घुसा सकता, तो नया पेज बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर, मतलब एक क्लस्टर ऑफ कीवर्ड्स के लिए एक पेज रैंक करता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
हाउ मच टाइम क्रॉलर टेक्स टू रीड द वेबसाइट ऑफ मैक्सिमम 10 पेजेस, ये ऐसा कुछ वो नहीं होता यार, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं होती कि टाइमिंग होती है। क्रॉल के लिए दो स्टैट्स निकल के आते हैं, एक तो क्या हो गया, टाइम स्पेंट होता है कि वो कितना टोटल आपके पेज के ऊपर कितना टाइम लगा रहा है, तो वो वेरी करते रहता है बार बार, वो पेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दूसरा पैरामीटर इसके अंदर जो निकल के आता है कि कितने पेजेस क्रॉल्ड पर डे थे, और वो ज्यादा मैटर भी नहीं करते हैं, क्रॉलर मशीन होता है, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर पढ़ देता है। एक मिनट और देखो, ये क्वेश्चन वाला आ गया हमारा, क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ कीवर्ड्स हो गया। अच्छा अच्छा, डेंसिटी ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड डेंसिटी के लिए देर आर लाइक वेज, अभी मैं आपको बता दूंगा बैकएंड में कैसे किया जाता है। यूजुअली क्या होता है, 1 से 2% तक कीवर्ड डेंसिटी होती है। तो जैसे हर 100 वर्ड्स के लिए आपको, या मतलब 1 से 3% तक कहते हैं, मैं तो अब उसको देखता भी नहीं हूँ, उसका एक सिस्टम बन चुका है, आपको बता दूंगा। तो 100 वर्ड में 3 बार 4 बार कीवर्ड रिपीट किया जाता है। अगेन प्लीज डोंट थिंक ऑफ कीवर्ड डेंसिटी इस टाइम पे, जितनी बार जरूरी है कीवर्ड रिपीट करना उतनी बार आप कीवर्ड रिपीट करो, यूजर के लिए कीवर्ड रिपीट करो, बट ऐसा नहीं करना ना कीवर्ड को डाला ही नहीं आपने, ठीक है। और इस चीज के ऊपर एक चीज और मैं करने लगूंगा, एक चीज और याद दिलाता हूं, इट्स नॉट ओनली द कीवर्ड, इट्स ऑल्सो रिलेटेड कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो कीवर्ड हो उसको सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल सोफा काउच रिक्लाइनर, एक ही वर्ड के सोफा के ही 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं बार बार सोफा सोफा करते रहूंगा। आई ऑल्सो यू नीड टू यूज सिनोनिम, आई ऑल्सो नीड टू यूज रिलेटेड कीवर्ड्स, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो मुझे यूज करने चाहिए, ठीक है। गर्भ सेज कीवर्ड और वेब एड्रेस और हेडिंग अल्फाबेट और न्यूमेरिकल विच इज बेटर। बॉस क्या कहते हैं, देखो यूजुअली टेक्स्ट लिंगो के अंदर अल्फाबेट इज स्क्रीमिंग, ऐसा लगता है कि अल्फाबेट में आप लोगों पे चिल्ला रहे हो। अगेन दिस इज नॉट अ रैंकिंग फैक्टर, गूगल सिर्फ टेक्स्ट पढ़ता है, ठीक है। दिस विल डिपेंड ऑन यूजर एक्सपीरियंस। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा पेज होता है, उसमें बड़ा बड़ा हेडिंग लिखी होती है अल्फाबेट पे, दैट इज डिजाइन कंसीडरेशन, दैट इज अगेन यूजर एक्सपीरियंस कंसीडरेशन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अल्फाबेट हो या कुछ भी हो, मतलब कि क्या कहते हैं हेल्प, मतलब बड़ा, अच्छा अच्छा सॉरी ही इज आस्किंग समथिंग एल्स, कीवर्ड और वेब एड्रेसेस और हेडिंग अल्फाबेट और न्यूमेरिकल व्हिच इज बेटर। आई डोंट नो व्हाई आई वुड हैव अ न्यूमेरिकल हेडिंग यार, मतलब पता नहीं, मे बी यू वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, बट एक तरीके से इफ यू आर सेइंग कि मैं नंबर 4 लिखूं या FOUR लिखूं, एक ही बात है, गूगल अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। अंकुर, आई होप योर आंसर इज satisfied. How many keywords can one choose? Choose as many keywords which will be good experience for your user. If you are thinking कि मैं 5 keywords के टॉपिक्स को एक ही पेज में ठोक दूं, फिर बाद में आपको लगे नहीं इससे यूजर कंफ्यूज हो जाएगा या हो जाएगी, तो आप क्या करो, 5 मत ठोको, 2 मतलब 3 कीवर्ड एक वेब पेज बना दो, रिमेनिंग 2 कीवर्ड का एक और वेब पेज बना दो। मेरे को यूजर, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मेरे को कीवर्ड्स से मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ये मेरी नीड है, मेरे को रेलेवेंट पेज चाहिए, इट डजंट मैटर, मतलब कि एंड आल्सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट की लेंथ। सपोज करिए एक छोटा सा कीवर्ड है, सिंपल कीवर्ड है आइसक्रीम पार्लर इन दिल्ली, मतलब सॉरी आइसक्रीम पार्लर इन मयूर विहार जहां मैं रहता हूं, तो उसके लिए एक ही पेज आता है। अगर कोई एक ऐसा आ रहा है कि टॉप 10 आइसक्रीम पार्लर्स रिवील्ड इन ईस्ट दिल्ली, तो उसके अंदर मैं बहुत सारे कीवर्ड्स भी डाल सकता हूं, वो सारी लेंथ पे डिपेंड। Vanshya says, how can you like identify the keywords your customers are looking for? This is a process called keyword research. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि कीवर्ड रिसर्च के हम केसेस करें और उसको बहुत बार करें, बिकॉज कीवर्ड रिसर्च एक तरीके से एक आर्ट है, अगर आपको वो आ गया तो आप बहुत अच्छा एसईओ कर सकते हो। हबीबुल, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका, सो दैट डायरेक्टली वी नो द पर्पस ऑफ द कंपनी, बात कर लेंगे इसके बारे में। फाल्गुनी कह रही है व्हेन पोस्टिंग लिंक्डइन लॉन्ग फॉर्म पोस्ट देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड इमेज ऑल टेक्स्ट आल्सो, इज इट रिकमेंडेड टू ऐड विद द हेल्प ऑफ एसईओ? एब्सोल्युटली। अब अगेन आई गो टू यूजेबिलिटी, माय लिंक्डइन यूजर इज विजुअली इंपेयर्ड, आई हैव अ ब्लाइंड लिंक्डइन यूजर, उनके ब्राउजर मेरे पोस्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो इमेज को कैसे पढ़ पाएंगे?
राइट? तो वो विद इन लिंक्डइन है ये एसईओ, बिकॉज ये जो पोस्ट होती है ये पोस्ट बाहर तो जा नहीं सकती है. आई थिंक फाल्गुनी आर टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन पोस्ट्स, राइट? जो मैं लिंक्डइन के विद इन पोस्ट करता हूँ, राइट? तो उसके अंदर भी Yeah, that's what I'm talking about. क्या, तो उसके अंदर भी लिंक्डइन इन इटसेल्फ, आई एम श्योर, मतलब लिंक्डइन इन इटसेल्फ उसकी यूजेबिलिटी के लिए आप डाल एवरीथिंग यू थिंक फ्रॉम अ यूजेबिलिटी एंगल. you know, content should be easy, it should be relevant, and it should be accessible to all. when we talk about like you know accessibility, हम बात करते हैं कि हमारे पास अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास क्या कहते हैं चॉइस था लो फ्लोर बसेस का और हाई फ्लोर बसेस का. उन्होंने चूज किया लो फ्लोर बसेस बिकॉज वो चाहते हैं कि व्हील चेयर एक्सेस भी हो. मेट्रो के अंदर व्हील चेयर एक्सेस देते हैं बिकॉज नॉलेज और फैसिलिटीज आर फॉर एवरीवन. एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. श्रीलेखा कहती है will Google penalize us if we overuse our keyword in image alt tag and not in the content of our web page site? Anywhere if you like you know overuse your keyword, उसकी पेनल्टी आजकल होती है. मैं अगेन आपको बोलता हूं, हम गूगल की तरफ से नहीं सोचते, ठीक है? एक बार के लिए मुझे पता है कि मेरी पूरी क्लास आजकल गूगल के बारे में ही है, पिछली 3 क्लासेस, बट प्लीज आप गूगल के बारे में मत सोचो. can we change this question? So Srilekha का question है, will Google penalize us if we overuse our keyword in image alt tag and not in content? Let me rephrase this. Will my customer like it if my keyword is over in somewhere? तो ऐसा कुछ नहीं है. अब कस्टमर को जो इमेज ऑल टैग का तो मतलब नहीं है unless I am visually impaired, right? तो उसके लिए चीज हो सकती है, अदरवाइज नहीं. हाँ विशाल, वेरी गुड क्वेश्चन. व्हेन वी अपलोड, ये बहुत बड़ी बात है. आपने कभी कभी, हर किसी ने अपना इमेज सर्च किया होगा, मतलब अपने नाम को आप गूगल में डालो तो इमेजेस के अंदर हमेशा वो आता है, क्या बोलते हैं मतलब इमेज के अंदर हमेशा हमारी फोटो आ जाती है. तो उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और विशाल थैंक यू सो मच फॉर दिस बिकॉज दिस वाज वन पॉइंट आई वाज मिसिंग. ओके, तो एक और चीज होती है जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन जैसे कहते हैं उसको. मैं आपको बता देता हूँ. सो गूगल के अंदर आप कभी भी गूगल पे गए होगे, पहले एक होता है ऑल रिजल्ट, एक होता है न्यूज ऊपर, और एक होता है इमेज रिजल्ट. इमेज रिजल्ट्स के अंदर सारी इमेजेस आ जाती हैं. तो रिमेंबर दिस, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए 2 चीजें भी जरूरत होती है. एक तो इमेज का फाइल नेम. आप कोई भी इमेज अगर whenever like you make an image, so whenever you make your image or any image, always save that name not as 0044.jpg. होता क्या डिफॉल्ट नाम होता है 04.jpg समथिंग करके, उसको रीनेम करके उसके अंदर कीवर्ड डाल. तो एक और चीज क्या थी, यहाँ एक और पॉइंट है, कीवर्ड इन इमेज नेम. बिकॉज उस इमेज को, अब इमेज को तो वो पढ़ नहीं पा रहे. इमेज जो ऑल्ट है वो ऑल्ट टैग वेबसाइट में है, वो इमेज पे नहीं है, ये याद रखिए, वो वेबसाइट के साथ चिपका हुआ है. तो इसलिए हमेशा अपनी इमेज को में कीवर्ड डालिए. अगर आप अपने नाम की इमेज बना रहे हैं तो उसको हमेशा अपने नाम से सेव करिए. इनफैक्ट मेरा तो ये भी सजेशन रहता है, बिकॉज आपको पता है पीडीएफ्स जो है वो पीडीएफ्स भी क्रॉलेबल हो चुकी है. गूगल पीडीएफ्स भी पढ़ रहा है, बिकॉज पीडीएफ और एचटीएमएल में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सारा टेक्स्ट है. तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपना सीवी बनाते हैं, तो वो सीवी वो कैसे डालते हैं, माई सीवी, फाइनल सीवी, ऑलमोस्ट फाइनल सीवी नहीं, सीवी बायोडेटा आशुतोष भारद्वाज, बिकॉज वो भी फाइंडेबल हो सकता है. ऑलवेज इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अ नेम टू योर इमेज, एंड दैट्स हाउ इट क्रॉल्स. yes Vishal, please you can speak out, no problem. So, thank you for clarifying that. Just one little bit on the same thing is that let's say that if I'm uploading a picture of my own, whether on Facebook or on LinkedIn, so you're telling me if my picture is saved on the desktop or my laptop, wherever it's supposed to be, I rename it as my name, like Vishal Dudeja, and then I upload it, the search is going to be much more probable, is what you're saying, correct? Yes, but I think LinkedIn and Facebook also tag it themselves. वो अपना टैग भी लगाते होंगे. Okay. करें, ढूंढे तुम्हारी इमेज, ट्राई करें. Makes sense. Okay. So that means now whenever I'm saving a picture or any other image that I have, it's better to tag it with my own name so that the search is much more faster and appropriate. Absolutely. Because ये जो इमेज सर्च है, ये इमेज सर्च के पास कुछ करने को नहीं है. एक मिनट आपको दिखाता हूँ. ये भी पता है, इमेज सर्च इज ऑल्सो अ वेरी गुड लाइक वे. मैं बार बार वही एग्जांपल्स लेते रहता हूँ, सॉरी. तो अगर मैं ढूंढता हूँ सोफा क्लीनिंग सर्विस, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो ना?
एंड उसके बाद मैं इमेज में चले जाता हूँ। लेट्स सी कि कौन सी इमेजेस उसके अंदर है। इमेज में गया, ये हो गया highcare.com। इसके वेबसाइट को विजिट करूंगा। इसमें इन्होंने 100% उसका वो रखा होगा, इमेज का नाम ही किया होगा। ये रहा ना ऊपर वाली इमेज है, इसको मैंने देखिए सेव करा, सेव एज। अब पता चल जाएगा, ये देखिए इसमें इन्होंने कीवर्ड डाला, देख रहे हो आप? Okay, got it. Makes sense. You got it? Yeah. All right, so you have to always put your image iske andar. If you ever want to like rank, you need to put your image there. I'm sorry, you need to like, because Google cannot really read the image, so that's why they're putting it sofa spa. So they're also probably thinking, see, sofa spa is also some kind of a keyword for this. So just one more clarification. Let's say now whatever pictures uploaded on my social media, if I delete that picture and I re-upload it with my name tagged to it, do you think that would make a difference? Yeah, I would always suggest that if you have any kind of an image or you upload it anywhere, you should always put your name there, because it will be recrawled. It doesn't matter, it will be recrawled. Correct. Okay. Right? Thank you. So that's also very important, because image search se bhi you get you always get a lot of like traffic from image searches there. It's not necessary that you get a traffic from the main thing also. Somebody who was in class yesterday, I think it was Vanshya, they mentioned that infographics are a very good way to get Google results. So yes, they are. Why? Because in infographics you also have the information. So if the infographic is properly named, probably people will straight away go to the image search and they will click on the infographic and they'll come on your website, because they were looking for an image, right? वो paper plane बनाने की image ढूंढ रहे थे, not looking for the technicalities of it. All right. Priyanshu, user is king. Absolutely. So वही तो चीज है. Let's stop thinking SEO. Let's start thinking user in some way. I think कि मतलब this can be this kind of thinking can really do. We will obviously identify these rules. We'll talk about all of this. ठीक है. So I quickly want to go through this again, because मुझे आपको चीज दिखानी है. आपको बहुत confusion, like I think all of you must be really confused, saying oh my god, he has given us 10-20 rules. How do we remember all these rules? So I have a trick for it, especially in customer like CMS, content management systems. In WordPress, there is a plugin which can help you do that. And I'll tell you about that very quickly. Let me get through the questions, Raj. Okay, so Mangesh has a very, very good question. He says that there are competitors and they are also very good at SEO, and they are also using the same page title and description. Which page would rank higher? All right. So this is a very, very broad question. First of all, if it's a very well-known website and I see it in my search results, and mine is also on search results, it doesn't matter on the ranking, but they will get better clicks. Secondly, having keyword in page title and description is not really a ranking factor anymore. I know that a lot of people, SEO technicians, they always talk about, page is not in SEO title, page is not in, keyword should be in description. Boss, that is a very small point amongst all these points. And in fact, this is something that I'm talking about hygiene. If I'm talking about keywords, these are things that have to be done. इसके बाद ranking शुरू होती है. So there are a lot of things. There are backlinks. There are how well you presented your content. There are things about how much your reputation of your company matters. So बहुत wide चीज है. I can't simplify it a lot like this. Two people on the same name with the first and second name, Google will be able to identify. ऐसा बहुत होता है. जब मैं आशुतोष ढूंढता हूँ तो आशुतोष राणा की फोटो बहुत आती है. तो Google is confused. ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ मेरी इमेज आती है एक लिंक्डइन के अंदर, एंड फिर आशुतोष राणा एंड पता नहीं कोई और आशुतोष होंगे मेरे से ज्यादा वेल नोन, उनके आते रहती है इमेजेस. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल ओनली बी योर इमेजेस. देयर कुड बी पीपल विद योर नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल राइट गाइस, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर. सो होता क्या है इन वर्डप्रेस, स्पेसिफिकली फॉर वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट. लेट मी जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस.
So WordPress content management system is really, really impressive. In fact, it's not just WordPress. There's a lot of content management systems which are available. एक Joomla कहते हैं, Drupal कहते हैं. There's a lot of content management systems. The thing with content management systems is you don't really have to do any coding. So a content management system will have, for example, if you have to publish an article, you will have something like ये page title है. उसके बाद you will have places for text boxes. You will have pages for images. So आपको कुछ कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी. What you'll do is you'll go there, you'll just write the title, type the title here. उसके बाद आप सीधा content type करना शुरू कर दोगे directly on this. You'll put any images, you'll be able to drag and drop. I'm sure you guys are familiar with it because some people write on LinkedIn, right? Some people also write on like क्या बोलते हैं उसको? Some people also write on Medium. All of these are content management systems which give you content in a very easy way. So they've given you a backend जहां बिना कोडिंग के आपने सब कुछ विजुअली डाल दिया एंड उसके बाद फिर एक बटन होता है पब्लिश का. इमीडिएटली आप उसको दबाओ उस बटन के बाद एंड देन द वेबसाइट, द वेब पेज बिकम्स लाइव. उसी टाइम वो लाइव हो जाता है वेब पेज. सो दिस इज द थिंग विद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स. सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर वर्डप्रेस इज द बिगेस्ट वन. ऑलराइट, वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन होता है एंड आई टॉक अबाउट वर्डप्रेस अ लिटिल बिट बाद में. प्लगइन क्या होता है? एक एडिशनल फीचर होती है उसके अंदर. दिस प्लगइन इज वेरी फेमस. इट्स कॉल्ड द योस्ट एसईओ. योस्ट एसईओ ना बहुत ऑसम चीज है. मैं आपको दिखाता हूं एंड you'll all be very very happy. So I have this presentation यहाँ. इसके अंदर मैंने थोड़े स्क्रीनशॉट्स लिए थे योस्ट के. तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है? Can you guys see it? ओके. सो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो यू विल डिसाइड योर कीवर्ड. यू विल पुट योर कीवर्ड हियर. So what you'll do is you'll take the keyword because that keyword has to be repeated different places. आप क्या करोगे? अपना keyword यहाँ डाल दोगे. एक keyword का synonym डाल दोगे. So for example, if I were talking about sofa cleaning services, I would put sofa cleaning service or sofa dry cleaning as a focus keyword. And my secondary keyword, and again I'm going to tell you how to choose your primary keywords and your secondary keywords. And for the secondary keyword I will put something like couch cleaning service. Give me 1 second guys, मुझे वो करना है, चार्जर लगाना है, बैटरी ड्रेन. ऑलराइट. सो वो मैंने कीवर्ड डाला. उसके बाद क्या करता है? योस्ट विल स्टार्ट टू एनालाइज योर कीवर्ड्स एंड हाउ दे आर पुट एंड देन इट विल गिव यू कंप्लीट फीडबैक. ऑसम नहीं लग रहा है ये? तो ये देखिए उन्होंने सिंपल, और इसमें कुछ चीजें मैं भूल गया हूं. ये देखिए कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन, कीवर्ड लेंथ इज गुड, कीवर्ड डेंसिटी उसने खुद कैलकुलेट कर दी फॉर द टेक्स्ट. 24 टाइम्स कीवर्ड रिपीटेड है, विच इज वेरी गुड. आपको बता दिया कीवर्ड इज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड टेक्स्ट लेंथ अच्छी है, कीवर्ड टाइटल के अंदर है, स्लग इज द यूआरएल. तो जो मैंने बोला था कीवर्ड इन यूआरएल इज आल्सो कवर्ड. और ये देखिए इट इज आल्सो गिवन यू फीडबैक सेइंग कि अनइवन है. सम प्लेसेस में कीवर्ड आपने 24 टाइम्स रिपीट कर दिया है, बट व्हाट यू डन इज सम प्लेसेस यू डोंट हैव कीवर्ड, सम प्लेसेस यू हैव कीवर्ड. एंड ये देखिए इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं डाले गए हैं and somehow keyword has not been put in the title. तो अब आप बताइए, like this is pretty exciting, right? Using this you can kind of get an idea on how to do keyword optimization. So and इसमें warning भी आ जाएगी. पहले आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, कीवर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद वार्निंग आ जाएगी. Now a lot of people they ask me कि अब योस्ट हर जगह तो हम यूज नहीं कर सकते. So one thing that I use always is people what they do is they ask me to optimize. They'll say कि यार वेबसाइट बनाना है यार, मैं काफी वेबसाइट बनाता हूँ. तो what I will do is I will take a page, I will take a WordPress install. ऐसे WordPress install एक मैंने बना रखा है. उसके अंदर मैं क्या करता हूँ? योस्ट ऑन करता हूँ, अपने कीवर्ड डालता हूँ, सारे टेक्स्ट को उसमें लिख देता हूँ. मुझे पता है कि टेक्स्ट मुझे वहां नहीं लिखना, टेक्स्ट हैज टू बी पुट बाय द कोडर. बट उसके बाद मैं इन सजेशंस से योस्ट से मुझे पता चल जाता है कि कीवर्ड प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं. एंड उसके बाद जब वो ऑप्टिमाइज हो जाता है उस टेक्स्ट को मैं कोडर को दे देता हूं और उससे वो ऑप्टिमाइज हो जाता है.
All right. Falguni wants to know a bit about CMSs. I think that's a different thing altogether. Let me do one session on CMSs. WordPress CMS बेसिकली एक बैकएंड होता है. मतलब यूजुअली तो कोड क्या होता है कि यू हैव टू कोड एवरीथिंग. साइट बनाने में आपको कोड करना है. एवरीबडी डज नॉट नो हाउ टू कोड. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेड सम काइंड ऑफ अ बैकएंड जिसके अंदर आपको सिंपल जगह मिल जाएगी. सब कुछ इनपुट का आप खुद इनपुट करोगे और उसके बाद वो सब कुछ को जोड़ के कोड बना के निकाल के दे देगा. So that's a content management system. There are a lot of content management systems. If you need to have an idea about what content management systems are, look at Medium. Medium is a very very famous, and in fact LinkedIn के अंदर भी जब हम चीजें पोस्ट करते हैं तो वो भी content management system के थ्रू ही होता है. All right guys, ठीक है. So I think क्या कहते हैं, today should be enough. I think it should be enough. Next class I think it will not be. Let's not do the next class tomorrow. Let's do it day after. I'm very confident कि इस time पे अब मुझे लगता नहीं कि we have to talk to other people if they want to attend this session. 40 people are good enough. I think 40 dedicated लोग हैं, more or less उतने रहते हैं. I will circulate a survey with some feedback. I know कि one very common feedback would be कि you would want me to use more examples. You would want me to actually show real examples. But the problem is I cannot show you backends and examples of websites that I'm not authorized for. But like I have some backends with me, I have some clients that I work for, but I do not want you to show you because वो personal हो जाता है. तो अब तो probably क्या जाएगा बाद में. What I can do is after this theory is over, I'll try to put my own backend, like because I'm making one website for this whole digital marketing course. I'll try to show that as an example, and बाकी कुछ freely available websites भी होते हैं उसके ऊपर भी हम चला सकते हैं. Anybody has any questions before we end? So today we learned about the factors that Google is looking for, on-page factors that Google is looking for. एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ before you go. एक बहुत important factor होता है. Excuse me. So ये जो keywords वाली चीज थी ये तो मैंने आपको बता दी. Keywords they need to be here, they need to be there, the keywords need to be everywhere, right? Now one of the very big factors which is there is, मतलब one of the top factors that we should think is user experience. अब आपने मेरे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैं एक पेज पे आया, उस पेज में कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट भरा हुआ है. क्या मैं उसको पढ़ूंगा? बचपन में भी when I was a kid or when anybody was a kid, they would say कि बॉस ये किताब है, इस किताब में बहुत फोटोज हैं, इस किताब के अंदर ना बहुत कम लिखा हुआ है. बच्चे उस किताब को ज्यादा पढ़ते हैं. जो उनको मॉडर्न किताब दी जाती है जो एडल्ट्स की होती है उसमें क्या होता है, बहुत टेक्स्ट होता है, बच्चे उसको उसी टाइम बंद कर देते हैं. Because उस टाइम पे the imagination is not so much that we are able to read, we want pictures. So एक बात बताइए, ये टेक्स्ट क्या मुझे हेल्प कर रहा है? What I need is I need text in proper way. I need a heading. I need subheadings. If the text is to be presented, तो टेक्स्ट को मुझे बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करना चाहिए. जहां जरूरत हो वहां मेरे को टेबल बना लेना चाहिए. So in the way, forget all about the keyword वाली चीज जो थी वो तो hygiene थी. Now when I talk about user experience, my content, ठीक है कीवर्ड होने चाहिए यहाँ पर चलो हो गए, कीवर्ड हो गए, कर दिया. कीवर्ड 2 मिनट की बात है, योस्ट ने 1 मिनट में बता दिया, राइट? The most important thing is the content should be presented in a format that it is easily digestible. ये ना हो कि उस पेज को मैंने देखा मुझे डर लग गया, ओ माय गॉड ये क्या है, मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था, ये तो मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा. इतना पढ़ना पड़ा होता तो मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं कर लेता, राइट? Why would I read so much? So the content has to be presented in a very very nice way. So user experience is something which is subjective. You have to present, you have to think of innovative ways. For example, मैं इतना लंबा क्यों रामायण लिख रहा हूं अगर एक वीडियो से काम हो जाए, राइट? There are various ways. मैं इतना बड़ा रामायण लिखी मैं एक इंफोग्राफिक बना दूं बढ़िया सा चीजें एक्सप्लेन करने के लिए. Will that be better from my user? And एक दूसरी चीज जो बहुत मैटर करती है वो होती है पेज स्पीड. अगर आपका वेबसाइट बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बट व्हेन पीपल क्लिक ऑन द सर्च रिजल्ट ऑन गूगल और 30 सेकंड तक वेबसाइट लोड करे जा रहा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, तब तो प्रॉब्लम है. पेज स्पीड इज समथिंग व्हिच गूगल हैज मेड अ रैंकिंग फैक्टर
बिकॉज गूगल को पता है कि वी वेबमास्टर्स आर लेजी। जब तक हमें लात नहीं पड़ेगी, जब तक हमें ये नहीं बोला जाएगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका रैंक नहीं करेगा, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो गूगल रिसेंटली पेज स्पीड पे बहुत बात कर रहा है। एक स्टडी भी उन्होंने करी है, उन्होंने बोला है कि बॉस अगर पेज स्पीड, आजकल लोग वेट नहीं करना चाहते, आजकल लोगों के पास, और एक और चीज, सबके पास 4G नहीं होता, सबके पास वाईफाई नहीं होता, 2G पे भी 3G पे भी सबके ऊपर। तभी आपने देखा है फ्लिपकार्ट का एक एडिशन आया, लाइट एडिशन, फ्लिपकार्ट लाइट, right? Why has Flipkart made a light edition? Because they know that in India there are a lot of places कि चाहे उनके पास 4G है, but फिर भी वहाँ 3G पे ही power आ रही है। So if the page speed is also very very important as a ranking factor. My list of ranking factors here is not an exhaustive list. It is the critical factors, and again I'm not even calling them ranking factors. Let me call them hygiene. So पहले ये चीजें आप करो, उसके बाद आपका वेबसाइट मतलब प्लेइंग फील्ड में आ जाएगा, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट हाउ गुड यू कैन रन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच विशाल। क्या कहते हैं, आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक with you. I have to make a YouTube channel, but if you could just allow me this weekend perhaps, because I also want to put a website in which everything is also listed. मैं ये नहीं चाहूंगा कि सिर्फ मैं YouTube वीडियोस डाल दूं, मैं इस पूरे कोर्स की एक्सरसाइजेस के साथ, read more links के साथ, मतलब what I want to, my objective here is to make it easy for you to learn digital marketing. So it's not just कि आपने basic सीख लिए, मैं आपको सब नहीं पढ़ा सकता. So I want to have a website, and I've also purchased the domain and everything. उसका designing भी चल रहा है. I want a website and a YouTube channel where this information can be accessible and you can progressively read more. So उसमें एक advanced section हो, एक basic section हो. By this weekend, I will definitely try to put the recordings at least there. All right. हाँ प्रियांशु, बहुत बड़ा क्वेश्चन, वेबसाइट इमेज साइज, बहुत बड़ी बात करी आपने प्रियांशु। इनफैक्ट मुझे लगता है वेबसाइट बना रहे हैं, ही हैड टॉक टू मी, सो बहुत क्लियर है। देखो बॉस, इस पे मेरी लड़ाई होती रहती है। सो प्रियांशु का क्वेश्चन है, पेज स्पीड है, पेज स्पीड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इमेजेस। कभी आपने देखा है पेज को आपने लोड किया, इमेज आ रही है आ रही है आ रही है, धीरे 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 लोड करती है, पागल खाना है। उसमें लोग क्या करते हैं, सीधी इमेज लेते हैं, उसको डाल देते हैं। Priyanshu, this is something that I have a fight with always with my marketing team. Banner image 50 KB, बात खत्म, ठीक है। और inside image not more than 30 KB, the end. इसको मैक्सिमम तुम ले जाओ 80 तक, 80 भी नहीं यार, 80 में तो रोने लगेगा, 70 KB मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम 40 KB ले जाओ। क्या कह रहे हो, कौन है? All right, this is something which is always there. अब इसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि 70 KB की इमेज तो पिक्सेलेट हो जाएगी, पर बॉस वो डेस्कटॉप पे पिक्सेलेट होगी ना। 90% लोग तो मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल पे तो इतनी सी इमेज आती है, उसमें पिक्सेलेट होना नहीं होना क्या फर्क पड़ता है। So be very careful about images. Google is now coming up with these new generation image formats which will be very very small, but अभी वो आए नहीं है। अभी हमें JPEG ही होती है, PNG मत डालो, PNG डालो सिर्फ लोगों के लिए, JPG इमेज डालो और JPG को कंप्रेस करके इतना बना दो। There's a lot of free compression softwares available on the internet. Photoshop में एक ऑप्शन होता है सेव फॉर वेब, उससे उसको सिंपल कर लो। और एक और चीज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमेज, उसका साइज भी प्रॉपर करो। तो साइज होना है ना, साइज भी ये नहीं किया कि बहुत बड़ी साइज इमेज बना दी, उसको भी छोटा करके। विशाल, आइडियल पेज स्पीड लेस देन 3 seconds, बट 3 seconds भी बहुत बड़ा टाइम हो गया। मुझे बहुत मजा आता है अगर 2 सेकंड से कम है पेज स्पीड। एंड ऑसम वाले पेजेस तो वो होते हैं, वो ऐसे लोड होते हैं 30, मतलब क्या कहते हैं 1 सेकंड में आता है भाड़ से पेज, पता चल जाता है। All right, okay guys, so I'll be floating feedback. I'm not doing classes today. I hope you guys continue with me, and like you know, I will definitely make a system by which you can have all these resources available for free online, so that anytime you can study. Feel free to ask me any questions. I want to talk about like वो वेबसाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं पोल रखूंगा, क्या हम उस व्हाट्सएप पेज को खोल दें? अगर मैं उस व्हाट्सएप पेज को खोल दूंगा, I need very
like you know, I need very mature admins for that WhatsApp page कि जो उसके अंदर बकवास ना होने दे. मैंने देखा WhatsApp page शुरू नहीं होता, लोग शुरू हो जाते हैं कुछ भी बात करने के लिए, and I don't want to. All right, guys. One more question. अच्छा, ठीक है guys. Thank you so much. I'm trying to do my best. I'll try to make this better, and I would really welcome your suggestions to make it better. I've seen a lot of people वो मुझे क्या कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर पिंग कर देते हैं. I do not mind that. आपके पास मेरा, you have my number. You can definitely ping me on WhatsApp with suggestions, with doubts. I will definitely try to answer all your suggestions. I will even try to take your cases अगर कोई, because some people have asked for specific cases. मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा. टाइम हमारे पास है, 3rd तक दुनिया बंद है, कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के आ. All right. Thank you everyone, and like looking forward to see you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thanks everyone. See you. Thank you so much. Thank you.